Hello everyone. Let's start chapter 2 of class 10th, acids, bases and salts. Let's discuss about the acids first. What do you mean by acids? Let me explain you with an example. If we take an hydrochloric acid and we add this acid to water, now it formed in an aqueous solution. ये aqueous solution हो गया acid का, है ना? तो in aqueous solution it will produce H plus ions and chlorine ions. ठीक है, अब ये H plus ions further will react with water क्योंकि हमने acid को water में add किया है, तो it will form H3O plus ions. तो जब भी कोई भी केमिकल H plus ions प्रोड्यूस करे या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे तो that we can say it is an acid. क्लियर? चलो एग्जाम्पल्स कुछ याद रखने ज़रूरी है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों है? क्योंकि दे प्रोड्यूस मोर H प्लस आयंस. ठीक है ना. अब कार्बोनिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड्स और यू कैन से दे आर माइल्ड एसिड्स. ठीक है. अब ये माइल्ड एसिड्स क्यों हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस लेस H प्लस आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन. ठीक है. चलो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं. H2SO4 को अगर मिक्स विद वाटर, so what we will get? We will get H plus ions plus SO4 2 minus ions. नाइट्रिक एसिड को चलो ऐड करते हैं वाटर में. In its aqueous solution, it will produce H plus ions plus NO3 minus ions. So in both the cases, you can see what is produced in the aqueous solution. H plus ions are produced. तो H plus ions जो है, that is responsible for the acidic behavior of the solution. Okay? Okay. Then what else we can say about the acids? All acids turns blue litmus to red litmus. अब ये litmus क्या है? Litmus is a paper. ये दो कलर का होता है, red and blue. तो जब भी आप blue litmus को, you can see in this image, whenever you will dip a blue litmus paper in an acid, it will turn the blue litmus to red litmus. आपको पता है कि जो acids are considered basically as dangerous, red color. तो इस तरह याद रखो. तो acids में अगर आप कोई भी solution में अगर आप blue paper litmus paper डाल रहे हो और वो red में convert हो रहा है तो that means it is an acid. अच्छा, अगर red litmus ही डालोगे acid में तो what will happen? It will remain red. वो blue नहीं होगा. ठीक है. अब acids, how are acids taste like? Sour. खट्टा होता है एसिड का टेस्ट, लाइक सिट्रिक एसिड, लेमन जूस. फाइन. ओके. नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द बेसिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेस? जैसे एसिड्स में क्या हुआ था, H प्लस आयंस प्रोड्यूस हुए थे, तो बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, OH माइनस. लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड when added to water, it will form what? OH minus ions plus Na plus ions. ठीक है. अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी देख लेते हैं. When added to water, it will produce hydroxide ions plus K plus ions. ठीक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं. When this is added to water, it will produce OH minus ions, that is hydroxide ions, and Mg2 plus ions. So here you can see everywhere it is OH minus, that is hydroxide ions are produced. So whenever OH minus ions, these indicates that we are talking about the bases. So don't forget, H प्लस आयंस अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट इज एन एसिड. ठीक है. OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट
बेसिस। ये इंडिकेशन है कि एसिड है सॉल्यूशन या बेस है सॉल्यूशन। Here also you should know few examples. You should learn like strong bases, sodium hydroxide, potassium hydroxide. अब ये strong क्यों है? क्योंकि they produce more hydroxide ions. And calcium hydroxide, magnesium hydroxide, these are weak bases. Why? Because they produce less OH minus ions. ठीक है? अब लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट होता है? लिटमस पेपर पर बेस का क्या इफेक्ट होगा? इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. चेक द इमेज. यू आर डिपिंग द red litmus. So when you will dip red litmus to any basic solution, it will turn the red litmus to blue. और अगर blue डालोगे तो blue का blue ही रहेगा. It will not change into red. ठीक है? Fine. अब next is how is the taste of the base? Bases का taste कैसा होता है? It tastes bitter. तो बहुत ही easy तरीका है एक learn करने का. B for base. B for its taste is bitter and B for it turns red litmus to blue. तो B base, B bitter taste, B blue litmus paper turn हो जाता है. And on touching it is soapy in touch. When you will touch any base it will give you a soapy effect. जैसे soap होता है ना slippery, तो base भी वैसे ही होते हैं. And remember very important point. All the bases do not dissolve in water. सारे बेस जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पे वाटर में हमने ऐड किया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो सभी बेसिस इस तरह पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते हो. ओनली फ्यू डिसॉल्व्स. तो जो डिसॉल्व हो जाते हैं, द बेसिस विच डिसॉल्व्स इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज. व्हाट दीज आर नोन एज एल्कलीज. ठीक है? तो ये तो थे कि कुछ इंडिकेशन हमें मिल रहा था कि कब हमें पता लगेगा कि कोई सोल्यूशन एसिड है या कुछ सोल्यूशन बेस है ना. अब लिटमस पेपर डाल के हमें पता लगा. ठीक है? लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी सोल्यूशन अगर आपके पास पड़ा है तो वेदर इट इज़ एन एसिड और बेस, so those chemicals which helps to detect the nature of other chemicals are known as indicators. ठीक है ना? अगर आपके पास एक सोल्यूशन पड़ा है, मान लो आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर कोई सोल्यूशन है, तो उसमें आप ये इंडिकेटर्स डालो, केमिकल्स डालो. ये इंडिकेटर्स क्या हैं? दीज आर नथिंग बट सम केमिकल्स. जब आप इस सोल्यूशन में डालोगे तो वो डिटेक्ट करते हैं कि क्या ये सोल्यूशन आपके सामने जो पड़ा है वो एसिड है या बेस है. तो किस जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं. जैसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स. तो नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि नेचुरल इंडिकेटर्स मीन्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर. द फर्स्ट वन इज लिटमस. अभी हमने पढ़ा लिटमस जो है वो दो तरह का होता है, ब्लू पेपर होता है और रेड पेपर होता है. तो ये जो लिटमस है ये प्लांट से मिला है हमें, और वो प्लांट का नाम है लीचन. और ये जो लीचन है यहाँ से हमें डाई मिलती है, पर्पल डाई. पर्पल कलर की डाई से फिर ये लिटमस पेपर बनता है. ठीक है? और नेक्स्ट है टर्मरिक. टर्मरिक तो हम सबके घर में होती है, हल्दी है ना, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन टेस्ट दिस, यू कैन यूज दिस एज एन इंडिकेटर. नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. फिनोफ्थलीन, दो नाम याद रख लो, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. तो अब इनको एक एक करके हम देखते हैं कि एसिड और बेसिस में हम इसको कैसे एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं. हाउ दे विल हेल्प अस टू नो वेदर सम सोल्यूशन इज एन एसिड और बेस. जब आप लिटमस पेपर को एसिड्स में ऐड करते हो या डिप करते हो, यू नो दैट ब्लू लिटमस विल टर्न इनटू रेड. ठीक है? और अगर आप लिटमस को बेस में यूज करते हो, डिप करते हो, तो रेड विल टर्न इनटू ब्लू लिटमस. ये तो हो गया. इस तरह आप इसको एज एन इंडिकेटर यूज करते हो लिटमस को. नेक्स्ट इज व्हेन यू विल ऐड टर्मरिक. टर्मरिक को अगर आप एसिड में डालोगे, है ना, किसी भी
एसिड में अगर आप टर्मरिक डालोगे तो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो टर्मरिक येलो की येलो ही रहेगी, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, दैट द सोल्यूशन इज एन एसिड। और अगर टर्मरिक को डालने से कलर टर्मरिक का चेंज हो जाता है रेड में, टर्मरिक येलो कलर की होती है ना, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो दैट मीन जो सोल्यूशन आपके पास है वो है एक बेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन को अगर आप सोल्यूशन में डाल रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी चेंज, तो दैट मीन्स वी आर हैविंग एसिड। और अगर फिनोफ्थलीन डालने से सोल्यूशन का कलर हो जाता है पिंक, तो दैट मीन्स इट्स अ बेस। तो जो सोल्यूशन को आप चेक कर रहे हो वो बेसिक बेस है। ओके ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज को अगर आप डालोगे, मिथाइल ऑरेंज को अगर आप डालोगे और अगर मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का हो गया, सोल्यूशन अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, तो दैट मीन्स द सोल्यूशन इज एसिडिक। और अगर मिथाइल ऑरेंज डालने पर सोल्यूशन आपका हो जाता है येलो इन कलर, तो दैट शोज दैट द सोल्यूशन वी आर हैविंग इज बेस। ठीक है, अब देखो ये जो आपने टर्मरिक और ये सब पढ़ा था, ये टर्मरिक और फिनोफ्थलीन, इसमें तो नो चेंज था, तो इजी है कि एसिड में तो नो चेंज होता है फिनोफ्थलीन का और टर्मरिक का, और लेकिन मिथाइल ऑरेंज में दोनों में कलर चेंज हो रहा है, एसिड में भी और बेस में भी। तो कैसे याद रखोगे, तो जस्ट रिमेंबर दिस लिटिल ट्रिक दैट माय एप्पल is red and banana is yellow। अब इसका क्या मतलब हुआ, my मतलब मिथाइल ऑरेंज, एप्पल का एसिड is red means when you will add methyl orange to acid it will turn into red, and when you will add this methyl orange to B, that is base, it will turn into yellow. This is how you can remember the methyl orange change. Other things are easy, you know, litmus paper to red, litmus to blue, blue to red, up you are learning from your lower classes, right? Turmeric और phenolphthalein का तो no change in acid, base में color change हो जाता है। red याद रखो, pink याद रखो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज olfactory indicators। olfactory indicators होते हैं जो odor से related होते हैं। odor means smell। by smell you can tell कि is it acidic or basic, base। so these are the substances whose odor changes in acidic and basic medium। तो अगर आप इनको ना इन जैसे वनीला फ्लेवर यू नो है ना, सूंघते ही पता लग जाता कि हाँ वनीला है। ऑनियन का जो स्मेल है, क्लोव्स का जो स्मेल है, तो इनको जब आप एसिड और बेस में अलग अलग डालोगे तो इनका ओडर जो है वो चेंज हो जाता है। तो बाय द ओडर, जो स्मेल से जब आप किसी चीज़ का पता लगा सकते हो कि एसिड है या बेस है, तो दैट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर नोन एज olfactory indicators। Let's see the next indicator, that is universal indicator. This is an important topic. What is universal indicator? It's a mixture of several indicators. It shows the different colors at different concentrations of H plus ions in a solution. Now what does that mean? It see different, look at this image first. This one. You can see here the different colors. Now what does these different colors shows? This shows the different concentration of H plus ions। हर एक कलर शो करता है कि H plus ions कितने हैं। ठीक है, अब जैसे आप इस इंडिकेटर को देखोगे, at 7 number at this color it is neutral, the solution is neutral। ठीक है, और अगर 7 से कम pH लेवल आए, तो 7 से कम वाले कलर्स आए, तो दैट मीन्स द H plus ions are more, the concentration of H plus ions are more।
इसलिए वो एसिडिक सोल्यूशन है। और अगर 7 से ज़्यादा मोर देन 7 pH वैल्यू आए तो that means H plus ions are less, the concentration of H plus ions are less, इसलिए the solution is alkaline। ठीक है, तो ये मतलब है कि concentration of H plus ion, that is what it means, it shows different colors and different concentrations of H plus hydrogen ions in a solution। तो ये जो different colors है इस स्केल पे वो दिखाते हैं कि H plus ions का concentration अलग अलग है हर कलर पर। ठीक है, okay, next is it not only tells the nature of the chemical but also the strength of the acid or base। तो ये जो colors है ना, ये आपको कोई भी solution acid है base है ये तो बताता है, लेकिन other than that it also tells you कि कितना strong है कोई base और या फिर acid। अब ये कैसे पता लगेगा कि strong है या वीक है, तो दैट वी विल स्टडी नाउ। द स्केल इज नोन एज पीएच स्केल। ये जो स्केल है ना, ये जो इमेज है, दिस इज पीएच स्केल। व्हाट इज दिस पीएच स्केल? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयंस को स्टडी करने का एक स्केल है। हर एक कलर बताता है कि H प्लस आयंस कितने हैं उस सोल्यूशन में। where this is called pH scale. Now P stands for potence, that means power in German language, and pH scale can measure from 0 to 14. तो 0 मतलब बहुत ज़्यादा acidic behavior, 14 means alkaline behavior. तो अगर आप इस pH scale को देखोगे तो 7 color, this color indicates the pH value. If अगर किसी भी solution का pH value 7 आता है तो that means that solution is neutral. अगर pH value 7 से कम आती है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, OH जो H plus ions हैं वो ज़्यादा है, more OH plus ions. यहाँ concentration of H plus ions is more. कहाँ पर? इस साइड पर, यहाँ पर less than 7. इसलिए these solutions will be acidic in nature. और अगर pH value 8 से more है, मतलब इस तरफ है, और pH value देखो बढ़ रही है, 14, 8, 9, 10, 11, 12, तो pH value बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, pH value बढ़ रही है मतलब H plus ions क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं. और अगर H plus ions लेस हो रहे हैं मतलब वो एसिडिक नहीं है, वो बेसिक इन नेचर है, वो एल्कलाइन है. तो कैसे याद रखेंगे हम कि अगर आपकी pH वैल्यू जो है, इफ दिस इज मोर, तो दैट मीन्स अगर ये मोर है तो H प्लस आयंस क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे. और अगर H प्लस आयंस लेस है तो दैट मीन्स द सोल्यूशन वी आर हैविंग इज अ बेस. और अगर pH वैल्यू आपकी लेस है, किससे लेस है, 7 से. इफ pH वैल्यू इज मोर देन 7 तो H प्लस आयंस लेस है. अगर pH वैल्यू इज लेस देन 7 तो that means H plus ions are more. और H plus ions are more means the solution we are talking about is acidic in nature or it is an acid. ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इमेज है आपकी NCERT की. Just learn this pH values for sodium hydroxide. NaOH हमने पढ़ा ना कि this is a strong base. तो इसका pH वैल्यू कितना है, 14. तो देखो यहाँ pH वैल्यू 14 है, मतलब इट इज मोर देन 7. 7 पे न्यूट्रल होता है ना. तो यहाँ पर pH वैल्यू मोर देन 7 है, तो मोर देन 7 है मतलब H प्लस आयंस क्या हुए, लेस हुए. तो लेस हुए मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट बेस. किसी तरह प्योर वाटर का देख लो, प्योर वाटर एंड ब्लड, तो इसका pH वैल्यू कितना होता है, रिमेंबर 7.4. तो न्यूट्रल साइड पे होता है प्योर वाटर, ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है. Same way your blood also, it's not acidic, it's not basic, alkaline, वो क्या है, न्यूट्रल है. अब लेमन जूस जो आप पीते हो है ना, लेमन वाटर पीते हो, उसका pH वैल्यू कितना है, 2. तो दिस इज एसिडिक इन नेचर, इट इज लेस देन 7. गैस्ट्रिक जूसेस, जो आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका pH वैल्यू कितना है, 1. तो रिमेंबर दिस एग्जाम्पल्स. Okay, so in the next video we will continue the chapter. Till then, just revise the chapter.
Bye.